Good afternoon, dear students. In ninth standard, we are going to start a new chapter, lines and angles. Maths, lines and angles. Lines and angles. Lines and angles. Before going to start lines and angles, we will discuss some things about lines and angles. You know that what is line? Line is a collection of points in a direction, and that's mean line is a collection of points in a fixed direction, straight line, and angles. What are the angles? Angle is a geometric figure which has two sides, and their common point, that is vertex, is common thing between between two arrows, two sides of angles. And types of angles are there also: acute angle, right angle, and obtuse angle. These are the types of angles. And types of lines also are there: parallel lines, intersecting lines, non-parallel lines. Okay. Suppose line AB is given. Line AB is given, and CD, line CD is intersecting to this line. Line CD is intersecting to this line, and there is another ray OE. We are given some information, that is angle AOC plus angle BO equals to 70 degree. Angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree. That is, sum of these two angles is 70 degree, and measure of angle BOD equals to 40 degree, and measure of angle BOD equals to 40 degree. Angle BOE and angle reflex angle COE we have to find. We have to find angle BOE. Angle BOE and angle COE. We have to find the measurement of these two angles, and the sum of these two angles is 70 degree is given, and the measurement of angle BOD it is 40 degree. In this figure we have noted this information, and using this information we will find the measurement of the given angles.
First one, what is the first condition is given? Suppose angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree. It is given. Using this we can solve this also. But again one condition is given, one information is given there. Measurement of BOD equals to 40 degree. Angle AOC equals to angle BOD because vertically opposite angle. Vertically opposite angles. Vertically opposite angles. And measurement of AOC equals to 40 degree. Angle AOC equals to measurement of 40 degree because the measurement of angle BOD equals to 40 degree. Angle BOD equals to 40 degree. So this angle will be also 40 degree. Now angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree, it is given. But we have found the angle AOC is of 40 degree. So write here 40 degree. 40 plus angle BOE equals to 70 degree. जैसे कि इसमें बताया है कि ये जो अपोजिट एंगल्स है, ये एंगल जो है एंगल BOD जो है वो 40 डिग्री का है और इसका अपोजिट में जो एंगल आएगा एंगल AOC वो जो है वो भी 40 डिग्री का रहेगा बिकॉज क्योंकि ये दोनों जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और हमें मालूम है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के मेजरमेंट जो है वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं और इसी तरह इन दो एंगल का सम जो है वो 70 डिग्री बताया गया है यहाँ पर और ये कंसेप्ट हम यूज़ करके इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। देखिए तो एंगल AOC का मेजरमेंट जो है वो 40 हमें मिल गया है तो उसको हम इसमें पुटअप करेंगे, जो गिवन इन्फॉर्मेशन जो है इसमें हम पुटअप करेंगे और पुटअप करने के बाद हमें एंगल BOE का मेजरमेंट मिलेगा। एंगल BOE इक्वल्स टू 70 माइनस 40 इक्वल्स टू 30 डिग्री। दिस इज द एंगल BOE। मतलब इस इक्वेशन में हम एंगल AOC का मेजरमेंट हम पुटअप करते हैं तो हमें एंगल BOE का मेजरमेंट मिलेगा। तो एंगल BOE जो है वो 30 डिग्री बनता है। तो अब हमें ये एंगल फाइंड करना है, एंगल COE। तो हम देख सकते हैं, हम इस फिगर को ऑब्जर्व कीजिए कि एंगल AOC ये एंगल COE दूसरा एंगल और एंगल EOB यानी कि BOE ये तीसरा एंगल जो हो ये लीनियर पेयर है, ये ऐसा लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। Therefore, angle AOC plus angle COE plus angle BOE equals to 180 degree. Linear pair. Linear pair. एंगल AOC जो है वो 40 डिग्री है, एंगल COE जो है वो मालूम नहीं है, उसे हम फाइंड करना है, प्लस एंगल BOE जो है वो 30 डिग्री है इक्वल्स टू 180 एंगल COE प्लस 40 प्लस 30 यानी कि 70। तो एंगल COE इक्वल्स टू 180 माइनस 70 एंगल COE इक्वल्स टू 110 डिग्रीज 110 डिग्रीज एंगल COE जो है वो 110 डिग्री आएगा। तो इसका मेजरमेंट जो है वो 110 है
अब इसका रिफ्लेक्स एंगल जो है एंगल AOD, एंगल AOD जो है एंगल AOC, ये जो रिफ्लेक्स एंगल है नीचे की साइड में दिखाया हुआ, इसका मेजरमेंट हमें फाइंड करना है। तो उसका भी मेजरमेंट हम लीनियर पेयर के द्वारा फाइंड कर सकते हैं कि जैसे कि एंगल AOD और एंगल BOD मिलकर दोनों का मेजरमेंट 180 है। एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180। एंगल AOD प्लस एंगल BOD यानी कि 40 इक्वल्स टू 180। एंगल AOD इक्वल्स टू 180 माइनस 40। एंगल AOD इक्वल्स टू 140 डिग्री। तो इसका मेजरमेंट बनता है 140 डिग्री। तो हम इस प्रॉब्लम के जरिए सीखे हैं कि लीनियर पेयर के द्वारा हम कि एक लीनियर पेयर दिया गया है, समझो कि जिसमें 3 एंगल्स है और उन 3 एंगल में से 2 एंगल का सम बताया गया है लेकिन तीसरे एंगल का सम नहीं बताया गया है, सॉरी मेजरमेंट नहीं बताया गया है। तो उस तीसरे एंगल का मेजरमेंट जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जो प्रॉपर्टी है इसके द्वारा हम वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है, जो 2 एंगल एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उनमें से अगर एक का माप दिया है तो दूसरे का माप हम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो दोनों भी एक जैसे ही होते हैं, दोनों भी एक मेजरमेंट के ही होते हैं। हम अभी दूसरा प्रॉब्लम फाइंड करेंगे इस तरह का। XY X और ये Y लाइन जो है XY लाइन, दूसरा है MN लाइन, दूसरा है MN लाइन, MN लाइन जो XY को इंटरसेक्ट करता है, और तीसरा है एक परपेंडिकुलर दिया है यहाँ पे P, यहाँ पे ओरिजिन है, और ये जो एंगल है ये दिया है A, ये दिया है B, ray OP stands on line XY। इन फिगर लाइन XY जो है वो लाइन MN को इंटरसेक्ट करती है, लाइन XY जो है वो लाइन MN को इंटरसेक्ट करती है, और OP जो है
सेगमेंट ओपी जो है, रे ओपी जो है वो एक्स वाई को परपेंडिकुलर है। और बताया गया है कि इन दोनों एंगल पी ओ वाई जो है, पी ओ वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। पी ओ वाई जो है वो 90 डिग्री है, इसका मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री है। और ए इज टू बी, ये जो रेशो दिया गया है ए इज टू बी, ये 2:3 है, ऐसे बताया गया है। तो इसके जरिए हम फाइंड करेंगे एंगल सी, सी का मेजरमेंट, सी का मेजरमेंट हम फाइंड करेंगे। तो देखिए एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स जो है वो लीनियर पेयर है। एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में दो एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिखी है कि एंगल पी ओ वाई और एंगल पी ओ एक्स जो है वो लीनियर पेयर है और दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है। वही बात यहीं पे हमने लिखी है। अब इस हमें और इंफॉर्मेशन दिया गया है कि एंगल पी ओ वाई जो है इसका मेजरमेंट 90 डिग्री है। तो हम इस इक्वेशन में उसको पुटअप करेंगे कि एंगल पी ओ वाई जो है वो 90 है, डिग्री मेजरमेंट है उसका, और पुटअप करेंगे उसको एंगल पी ओ एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम इसको नंबर को एक ही साइड में ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि 180 माइनस ये 90 इधर जाने के बाद माइनस बनेगा और ये एंगल पी ओ एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 90 90, एंगल पी ओ एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी ओ एक्स जो है वो 90 डिग्री बन चुका है, यानी कि ये टोटल मेजरमेंट जो है इन दोनों का ये भी 90 डिग्री है। और रेशो हमें दिया गया है 2:3। तो हम ये दो एंगल का रेशो जो है ए इज टू बी, ये कितना दिया गया है 2:3 दिया गया है। तो हम इस कंसेप्ट को यूज करके हम उनका मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 2x, b equals to 3x. Therefore, angle POM plus angle MOX equals to 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो एंगल POM जो है वो है 2x, सॉरी a प्लस b इक्वल्स टू 90, 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 2x प्लस 3x यानी बनता है 5x इक्वल्स टू 90 और x इक्वल्स टू 90 अपॉन 5। 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 8s are 40। x का वैल्यू मिलता है हमें x 18। तो इसी तरह से हम एंगल POM, एंगल POM यानी कि A इक्वल्स टू 2x यानी कि 2 इंटू 18 यानी कि 36 डिग्री। देयरफॉर एंगल MOX इक्वल टू B यानी कि 3x यानी कि 3 इंटू 18 54 डिग्री। और XON, एंगल XON, इस एंगल को हम फाइंड करना है, इस एंगल को। तो सबसे पहले हम ये जो एंगल है दोनों B, एंगल MOX और एंगल NOY, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इन दोनों का मेजरमेंट इक्वली रहेगा। देयरफॉर एंगल MOX इक्वल्स टू एंगल YON, एंगल YON, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है,
और MOX का मेजरमेंट आया 54 डिग्री, तो एंगल YON का भी आएगा 54 डिग्री। देयरफॉर एंगल YON इक्वल्स टू 54 डिग्री। तो YON जो है वो 54 डिग्री है। अब हम ये दो एंगल जो है ये लीनियर पेयर एंगल है और ये दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है। इस कंसेप्ट प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसको मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए एंगल XON प्लस एंगल YON इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल XON C प्लस YON 54 इक्वल्स टू 180, C इक्वल्स टू 180 माइनस 54, 180 minus 54, 10 minus 4 is 6, 17, 7 minus 5 is 2, तो C equals to 126 डिग्री। तो एंगल C का मेजरमेंट जो है वो 126 डिग्री रहेगा। तो इस तरह से हम लीनियर पेयर में जो एंगल्स दिए हुए हैं, किसी एंगल का मेजरमेंट दिया है तो वर्टिकली अपोजिट का मेजरमेंट फाइंड करना, और किसी एंगल का रेशो दिया है तो दूसरे अननोन एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड करना, ये सीख चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद।